امریکی اقتصادی دہشت گردی عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے نیو یارک ٹائمز کی گزشتہ روز کی امریکی قرضوں کے $40 ٹریلین تک پہنچنے کی پوسٹ شیئر کی۔ کہا کہ امریکی صدر کا ایران کے خلاف معاشی اعلان جنگ امریکہ کے اپنے بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے کوشش ہے۔ ناکام پالیسیوں کو مزید آگے بڑھانا صرف مزید شکست کا باعث بنے گا۔ ایرانی رکن پارلیمنٹ ابراہیم رضائی نے جوہری معاہدے سے نکلنے کی تجویز دے دی۔ کہا کہ امریکہ کی معاشی جنگ کا بہترین جواب NPT سے دستبرداری ہے۔ USS ابراہم لنکن 9 ماہ کی تعیناتی کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز سان ڈیاگو کے لیے روانہ ہو گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ابراہم لنکن کی تعیناتی کا بڑا حصہ ایران کے خلاف کارروائی میں گزرا۔ USS جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی میں ابراہم لنکن کی جگہ لے لی۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر رسد کی کمی کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف تاریخ کے سخت ترین معاشی اقدامات کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی معاشی ناکہ بندی کی جائے گی۔ ہمارے اتحادی اور عالمی برادری ایرانی حکومت کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کرے۔ آبنۂ ہرمز اور تیل کی آمد و رفت پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ سخت ترین پابندیاں عائد کر کے معیشت تباہ اور ایرانی حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ بانی PTI کو سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر حکومت نے بانی تحریک انصاف کو اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹرز کی 6 رکنی ٹیم بانی PTI کا ابتدائی معائنہ کرے گی۔ اسپتال منتقلی سے قبل اڈیالہ جیل میں بانی PTI کا طبی معائنہ کیا گیا۔ میڈیکل بورڈ میں شامل ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عظمیٰ بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بانی PTI کی اسپتال منتقلی پر مشاورت کی گئی۔ بانی PTI کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی ضرورت ہوئی تو بھیجیں گے۔ حکومت بانی PTI کے علاج کے لیے عدالتی حکم کی پابند ہے۔ طارق فضل چودھری نے سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا سرکاری اسپتال میں نہیں تو دیگر اسپتال میں علاج کرائیں گے۔ نظر ثانی درخواست میں سپریم کورٹ سے رائے مانگی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ڈیزل ₹1.64 فی لیٹر مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں 27 پیسے فی لیٹر مزید اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ یمنی حوثیوں کا سعودی عرب پر 2 ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ حوثی فوجی ترجمان نے کہا نجران ایئرپورٹ پر حساس ہدف اور آرامکو کی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے حوثیوں کے حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ یمنی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 3 غیر ملکی جنگجو ہلاک۔ العربیہ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے 2 اہلکار شامل تھے۔ تیسرا ہلاک شخص عراقی تھا اور اس کے بھی پاسداران انقلاب سے روابط تھے۔ حوثی فورسز کے ایک بریگیڈ کمانڈر کے ڈرون حملے میں زخمی ہونے کی بھی اطلاع۔ یمنی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 3 غیر ملکی جنگجو ہلاک۔ العربیہ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے 2 اہلکار شامل ہیں۔ تیسرا ہلاک شخص عراقی تھا اور اس کے بھی پاسداران انقلاب سے روابط تھے۔ تینوں غیر ملکی جنگجو یمنی حکومتی فورسز سے جھڑپ میں مارے گئے۔ حوثی فورسز کے ایک بریگیڈ کمانڈر کے ڈرون حملے میں زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ چین کا امریکہ سے ڈرونز پر عائد کردہ نئی ٹیرف فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق امریکہ کا سیکشن 232 کے تحت ٹیرف لگانا قومی سلامتی کی آڑ میں پروٹیکشنزم ہے۔ امریکی اقدام سے عالمی سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے۔ واشنگٹن کو امتیازی پالیسیز ترک کر کے غیر منصفانہ پابندیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش۔ حکومت اپوزیشن سے بامقصد بات چیت کے لیے تیار ہے۔
वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि ताली दोनों हाथों से बचती है, अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। हमने हमेशा मुकालमे को ही तरजीह दी। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम कीमतों में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिशों के आज़म का भी यादा, कहा डीजल की कीमत में 32 रुपए फी लीटर कमी खुशाइंद है। खिते की सूरत हाल की वजह से तेल की सप्लाई में मुश्किलात हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की पेशकश का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात को पेशकश की हद तक ना लें, कदम आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात की पेशकश अच्छी है, लेकिन उसे संजीदा लिया जाना चाहिए। सियासत में किसी पर भी क्रॉस नहीं लगना चाहिए। बानी को अस्पताल मुंतकिल ना किया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर से कौमी असम्बली में मुलाकात। बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद जगज़ई से मुलाकात। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तिफ़ाक़ हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुत्तहिदा अपोजिशन के मामले पर मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। हम मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान से सवाल, कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए माहौल बनना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी रवाबत में इजाफा होगा। पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से शामी हममनसब असद हसन शिबानी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इरादा। इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान कराने की तजवीज़, बल्दियाती इलेक्शन मरहलावार कराने की भी तजवीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इजलास। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुजवज़ा तारीखों की तजवीज़ पर इत्तिफाक कर लिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख मुकर्रर करेगा, हम इलेक्शन करवा देंगे। पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है, बाकी सूबों का तो कोई हाल ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा, तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। किसी को कौमी वसाइल में खयानत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का हर महकमा टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की कोताही बरतने वाले ऑफिसर्स पर सख्त बरहमी का इजहार। शहरों और देहात में स्टाफ और वर्कर्स की गैर हाजिरी की रिपोर्ट का सख्त नोटिस। सफाई ऑपरेशन में कोताही और घपले पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पंजाब में तमाम सर्विसेज मरियम की दस्तक ऐप पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PITV को सर्विसेज की डिजिटल मुंतकली का टास्क दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज से वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी, मुनज़्ज़ा हसन और गुल असगर की मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और मेट्रो बस कंपनी की बाहमी रजामंदी से मेट्रो बस सिस्टम फरोख्त की इजाज़त। मेट्रो बस सर्विस चलाने वाली बस कंपनी ने बसेस की फरोख्त के लिए राबिते शुरू कर दिए। निजी बस कंपनी ने 2 बड़ी निजी कंपनियों से बसों की फरोख्त पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक कागजात और मुआहदे की तब्दीली में मेट्रो बस सिस्टम की ऑडिट रिपोर्ट का होना मशरूत। नई खरीदने वाली कंपनी नई बसों समेत मौजूदा तमाम बसें चलाने की पाबंद होगी।
पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोलियम लेवी टैक्स को ख़त्म करना होगा। अगर हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत का निज़ाम अवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से बार बार IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल $2.34 से बढ़कर $86.73 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट ऑयल $2.27 इजाफे से $93.89 फी बैरल पर फरोख्त। मर्बन ऑयल $1.59 इजाफे से $101 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। 92 न्यूज़ की छोटे सूबे मजबूत, पाकिस्तान पर खसूसी ट्रांसमिशन। माहिरीन मईशत और सियासी रहनुमाई की सेर हासिल गुफ्तगू। खाकान नजीब ने कहा, जब रिफॉर्म्स हो जाएं तो फिर नए सूबों पर काम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर सूबा हज़ारा को सपोर्ट करती है तो ये सूबा बनाने में कोई हर्ज नहीं। चीन लोकल गवर्नमेंट पर 60% खर्च करता है, पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट पर 5% भी खर्च नहीं करता। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, छोटे मुल्कों ने हमसे ज़्यादा छोटे यूनिट्स बनाए। छोटे सूबों या छोटे यूनिट से एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया जाता है। कई ममालिक ने एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स बनाए, फिर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नाफिज किया। चाहते हैं कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा माल में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। नादरा ई सहूलत मराकज़ के ज़रिए ज़मीन की फ़र्द के इजरा की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला की आइंदा हफ्ते नए सहूलत का इफ्तिताह करने की हिदायत। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, नई सहूलत से शहरियों का वक्त और वसाइल बचेंगे। अवाम की आसानी, शफाफ निज़ाम और बेहतर गवर्नेंस हमारी तरजीह है। वफाकी आईनी अदालत का अवामी मकासद के लिए लैंड एक्विजिशन पर बड़ा फैसला। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट, पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। 45 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि अराजी मालिकान को बाद में बढ़ी हुई कीमत अदा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। अराजी के जबरी हुसूल पर कानून के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। तमाम ज़मीन मालिकान को यकसा मुआवजे की अदायगी मुतफिका की जिम्मेदारी है। जस्टिस अरशद हुसैन ने अदा की गई इजाफी रकम वापस न लेने का नोट लिखा। सोशल मीडिया पर केस की तशहीर के खिलाफ ऑर्डर जारी करेंगे चीफ जस्टिस। बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान मुल्लाखिल का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, अदालतों के हाथे में रश न किया जाए। रश से जजेस को दबाव में नहीं लाया जा सकता। हमें अपने साथ अवाम और साइलिन के तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास है। हम दिन में कई बार अदालतों की सिक्योरिटी चेक करते हैं। बलोचिस्तान बार एसोसिएशन ने हमेशा रिवायात की पासदारी की है। कीनिया में सयाहों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। हादसा दारुल हुकूमत नैरोबी के शिमाल में सम्बोरो काउंटी में पेश आया। हेलीकॉप्टर में एक पायलट और 6 मुसाफिर सवार थे। हलाक होने वालों में एक्वाडोर के इंटेलिजेंस चीफ मिशेल सेंसी भी शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हादसे में 5 अमरीकी शहरी भी हलाक हुए। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं।